قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھنے کا صحرا قائد عوام کے سر ہے۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھی قائد عوام کے دور میں ہی رکھی گئی۔ پاکستان کو پہلا متفقہ آئین بھی بھٹو ہی نے دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ علی بھٹو 1928 میں لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قانون میں ماسٹر کیا۔ 1958 میں عملی سیاست کا آغاز کیا۔ ہم تو پاکستان کی سالمیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی حاکمیت کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور خدا میرا گواہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں اپنی جان قربان پاکستان کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ ہونے کا اعزاز ان کے حصے میں آیا۔ سلامتی کونسل میں ان کا انداز تخاطب آج بھی لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? معاہدہ تاشکند پر ایوب خان سے اختلاف ہوا۔ جب ایوب خان نے معاہدہ تاشکند پر دستخط کیے تو حکومت سے الگ ہو گئے۔ 30 نومبر 1967 کو اپنے دوست مبشر حسن کے گھر پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کا نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں۔ میں کون سی چیز ہوں، میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا، فیصلہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ ایک عوامی مقرر تھے۔ جب خطاب کرتے تو ایک سما باندھ دیتے۔ یہ میرا مکتب فکر ہے کہ کوئی قدم، کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر، غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر۔ انہوں نے چند سالوں میں ہی پیپلز پارٹی کو ملک کی مقبول ترین پارٹی بنا دیا۔ 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی ملک کی واحد اکثریتی جماعت بن کر ابھری اور بھٹو وزیر اعظم بنے۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ان کے سامنے کئی چیلنجز تھے، جس میں بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا، بھارت سے تعلقات کی بحالی، 90,000 قیدیوں کی واپسی اور بھارت کے زیر قبضہ 5,000 مربع میل زمین کی واپسی، اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ ملک کو 73 کا متفقہ آئین دینا اور ایٹمی پروگرام کا آغاز وہ کارنامے ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے والے سابق وزیر اعظم پاکستان اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی آج 40ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا صحرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ وہ بین الاقوامی قدآور سیاسی شخصیت کے روپ میں ابھر کر سامنے آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم کے بعد 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاسیات کی ڈگری حاصل کی اور اصول قانون میں ماسٹرز کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے عامر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، اقلیتی امور، صنعت و قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے عہدوں پر فائز رہے۔ ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا۔ My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. جنوری 1966 میں صدر ایوب خان نے اعلان تاشکند پر دستخط کیے تو ذوالفقار علی بھٹو بڑے دل برداشتہ ہوئے اور اسی برس وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ ملک کے 2 لخت ہونے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے سر انجام دیے۔ میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکند کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔
पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत खत्म होने के बाद 1977 के आम इंतखाबात में धांधली के सबब मुल्क में हालात कशीदा हुए। 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में कायदे अवाम को 2 बार नजरबंद करके रिहा किया गया। जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1977 को उन्हें इस कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। पाकिस्तानी सियासत के उफक के इस चमकते सितारे को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। लेकिन पाकिस्तान की सियासत आज भी उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे, तो खिदमत करोगे। जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किए हुए दहाइयां बीत गईं, मगर भुट्टो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। भुट्टो को फांसी देने का फैसला करने वाली बेंच का हिस्सा रहने वाले कई जजों ने भी बाद में एतराफ़ किया फांसी का फैसला गलत और अफसोसनाक था। And hold free election and let the people decide the fate. साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की फांसी का हुक्म जिस बेंच ने दिया था उनमें जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह भी थे, जिन्होंने भुट्टो की फांसी के कई बरसों बाद मारूफ एंकर इफ्तिखार अहमद को दिए गए एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि ये एक अफसोसनाक फैसला था। मुझे भी इसका बाद में काफी अफसोस रहा, मगर वो उस वक्त का माहौल होता है कि ये जो है उसका वकील जो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए सेंटेंस पे मैंने बहस नहीं करनी, या मुझे बरी करो या जो मर्जी सजा दो, तो आदमी इंसान है उसमें यानी एक किस्म का पुट ऑफ हो जाता है। जस्टिस नसीम हसन खान का कहना था कि भुट्टो को शक का फायदा दिया जा सकता था। सर आप खुद तस्लीम करते हैं कि ये भुट्टो को ये मिलना चाहिए था, ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। ये तो अगर इसको आप जाती तौर पे तस्लीम करते हैं जैसा आपने माना, तो अगर आप डिसेंडिंग नोट लिख देते तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ ना होती या नहीं होती, मगर कम अज कम उसकी जान बच जाती। मौलवी साहब की ज़्यादती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे और वो भुट्टो के दुश्मन थे और उनको चाहिए था कि इस केस में ना बैठते तो बेहतर था। जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल केस से वाबस्ता बहुत से अफराद ने बाद में ये एतराफ़ किया कि भुट्टो शहीद की फांसी का फैसला दर हकीकत एक अदालती कत्ल था। ये मेरा वक्तव्य फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है। जियालों की बड़ी तादाद गढ़ी खुदाबख्श में इस वक्त शहीद भुट्टो के मज़ार के बाहर मौजूद है और आज 3 बजे जलसा भी होगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदगान हमारे आज़ाद नौडियो और अब्दुल खालिक मुगेरी। आज़ाद नौडियो इस वक्त मज़ार के अहाते में मौजूद हैं, उनसे पहले बात करते हैं। आज़ाद बताएगा क्या आज का शेड्यूल है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जो है गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो। यहाँ पर एक तारीख रकम है, मेरे अकम में वो उस शहीद की मज़ार कब्र मौजूद है जो है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिसमें एक तारीख रकम की जमूरियत की एक अलामत थी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिनकी आज जो है 40वीं बरसी मनाई जा रही है, इस हवाले से बड़ी तादाद में कारकुनान और जियाले और ख़ास तौर पर देखा जा सकता है कि इस वक्त शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक अकीदे की अलामत बन चुके हैं। यहाँ पर अकीदतमंद भी बड़ी तादाद में मज़ार पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं। उनकी कई ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी के सिलसिले में आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर से जियाले न सिर्फ आ रहे हैं और यहाँ पर मज़ार पर पहुँच रहे हैं और हाज़िरी देने के बाद में जलसेगाह के मुकाम पर जो है मुंतकिल हो रहे हैं। आज यहाँ पर जो है जलसे आम का इनकाद होगा शाम 3:30 बजे, जिस जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आज जो भुट्टो की बरसी है, इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत इंतहाई अहम ऐलान करेगी। वो ऐलान जो है खास तौर पर तब्दीली सरकार की जनब से जो महंगाई का तूफान बर्पा किया गया है, यहाँ पर आज खास तौर पर आवाम के ऊपर जो मुश्किल में डाला गया है, जोश में बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आज का शेड्यूल जो है उस हवाले से भी आपने हमें कहा कि आज़ाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुल खालिक मुगेरी के जानिब रुख करते हैं। अब्दुल खालिक, आप बताइएगा, आप मज़ार के बाहर मौजूद हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम और दीगर मामलात भी आगाह कीजिएगा।
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी तकरीब यहाँ गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मनाई जा रही है। कल से लेकर यहाँ पर समेत मुल्क भर से जो है काफिलों की सूरत में जियालों के आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। लोगों ने सुबह से ही जो है मज़ार पे हाज़िरी दी। सुबह से पहले जो है 4 अप्रैल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो मज़ार के अंदर कुरान ख़वानी की गई, जिसके बाद जो है इस बरसी तकरीब का आगाज़ किया गया है। यहाँ पर जो है मुल्क भर से जो है जियालों के आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। वॉक थ्रू गेट के जरिए यहाँ पर लोगों को जो है इंटर कर रहे हैं और सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए। लोग जो है यहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, भुट्टो खानदान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए 4 अप्रैल और 27 दिसंबर को यहाँ पर गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में पहुँचते हैं। एक बड़ा इज्तिमा होता है और जलसे की सूरत अख्तियार करके यहाँ पर लोग जमा होते हैं। आज जो है 3 बजे यहाँ पर जलसा होगा। जलसे में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी और समेत जो है दीगर जो मरकज़ी रहनुमा है वो खिताब करेंगे, कार्यक्रमों का लहू फरमाएंगे। यहाँ पर जो है कैंप भी लगाए गए, इस्तकबालिया कैंप जो है ज़िला भर से लगाए गए। यहाँ पर जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनको रिहाइश के लिए भी कैंप लगाए गए हैं। बाजार के अंदर इस वक्त भी लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद है, हाजिरी दे रहे हैं और जबकि पार्किंग का भी बहुत इंतजाम किया गया है। यहाँ पर सबीलें भी यहाँ पर दी जा रही है, नगर का भी इंतजाम है। यहाँ पर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे से जो जलसा शुरू होगा वो अपने कायद, अपने लीडर का जो है खिताब सुने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया अब्दुल खालिक मुगेरी और आज़ाद नौड़िया तमाम सूरत हाल से।